Hi everyone. I hope you all are doing good. Things are great at my side also. Let us move forward in our discussion with respect to suggested answers to MCQ and case scenario. And first of all, very much thankful to all of you that you have spread this to your friends, and many of you are messaging me also sir day 4 मतलब part 4 कब आएगा. Thank you for that, showing the love toward this video lectures. Okay, I'm very happy that this thing is benefited to you. This do one thing, share it maximum as much as possible, so that many students can take a benefit of it. Thank you so much once again. Now, with respect to day 4, as far as day 4 is concerned, we are going to deal with the MCQ from 31 to 40 and case scenario from 16 to 20. As you know that मैं हर वीडियो के अंदर 10 MCQ and 5 केस सिनारियो क्वेश्चंस को दे रहा हूँ, राइट? सो without wasting the time, let us start with the question number 31 with respect to MCQ. See, question 31 क्या बोल रहा है? 31 says that Mr. X acquires an asset in the year 2015-16 for Mr. X acquire Mr. X acquires an asset in the year 2015-16 for the use for a scientific research for 2,75,000. He claimed deduction under section 3514 in the previous year 2015-16. The asset was brought into use for the business of Mr. X in the previous year 2021. After the research was completed, the actual cost of the asset to be included in the block of asset is. Okay. So for this purpose, we must know about one thing, that is explanation to section 43(1). Explanation to section 43(1), or first of all, let me tell you what section 43(1) deals with. Section 43(1) deals with actual cost of the assets. Okay, so explanation टू सेक्शन 43(1) के अंदर फर्स्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी असेट को आप पर्टिकुलर असेट को अगर आप पहले साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज कर रहे थे और फिर उस असेट को आप नॉर्मल बिजनेस के अंदर लेके आ रहे हो, अगर आप नॉर्मल बिजनेस में उस असेट को लेके आओगे तो फिर उस असेट की जो कॉस्ट है वो नील लिखी जाएगी एज पर एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 43(1). So according to that, the answer will be A. Okay. Move to the next question, 32. Mr. X, a retailer, acquired a furniture on 10th May 2020 for rupees 10,000 in cash, and on 15th May 2020 for 15,000 and 20,000 by a bearer check and account payee check respectively. Depreciation allowable for assessment year 21-22 would be what? Okay. So for this purpose, we must remember that in the actual cost also one of the clause is there to, for the purpose of making the payment for the purchase of plant and machinery or furniture or any other asset, you must not spend more than rupees 10,000 in cash or by a bearer check or by cross check in a day to the same person. ओके, क्या होगा अगर ये 10,000 से ज्यादा का अगर आपने पेमेंट कर दिया तो क्या होगा, दैट फुल अमाउंट विल नॉट बी, फुल अमाउंट इज नॉट अलाउड टू बी एडेड इन एक्चुअल कॉस्ट, मतलब उसमें आपको नहीं मिलेगा. So that is not allowed to be added in the actual cost. उसको आप एक्चुअल कॉस्ट में ऐड नहीं कर पाओगे. एक्चुअल कॉस्ट में ऐड नहीं कर पाओगे मतलब दैट असेट इज नॉट एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन. सो डेप्रिसिएशन इज नॉट अलाउड ऑन सच असेट. सो अगर आप यहाँ पे देखोगे 10th में 2020 को उन्होंने जो परचेस किया वो कैश में किया, 10,000 तक का पेमेंट तो अलाउड है बेटा, तो 10,000 ऐड हो जाएगा. 15 में 2020 को 15,000 का पेमेंट किया है एंड 20,000 का पेमेंट किया है बाय अ बेरर चेक, तो बेरर चेक से जो पेमेंट किया वो नॉट अलाउड हो जाएगा.
20,000 बाय अ बेarer चेक एंड अकाउंट पेई चेक रिस्पेक्टिवली। तो 20,000 जो है वो अकाउंट पेई चेक से, तो दैट विल बी अलाउड। सो अगर मैं बात करूं इस फर्नीचर की, तो 10,000 के फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन मिलेगा, 20,000 के फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन मिलेगा। सो 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 10% आप कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 3,000 रुपीज। 3,000 रुपीज इज द डेप्रिसिएशन। ओके सर, 10% क्या लिखा आपने, 10% इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, the WDV of a block of plant machinery rate of depreciation 15% on 1st of April 2020 is 3,20,000. A second-hand machinery costing rupees 50,000 was acquired on 1st September 2020 through account pay check but put to use on 1st November. Now as we know that परचेज का डेट अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है इनकम टैक्स के अंदर। इनकम टैक्स में अपने को पुट टू यूज का डेट इंपॉर्टेंट होता है। During the Jan 2021, part of this block was sold for 2 lakhs. The depreciation for assessment year 21-22 would be what? So, in income tax, we are not charging the depreciation according to the machinery which we have used. But income tax में हम लोग को put to use देखने का रहता है। In second thing, जो भी हम लोग यूज करते हैं उसके लिए हम लोग को ब्लॉक वाइज डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ता है। एंड हाउ वी कैलकुलेट दैट, तो एक मैं बता देता हूँ कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। Okay, so in this case what we are supposed to do and how we were doing, okay, इसमें हम लोग करते कैसा है, इसमें हम लोग को पहले लिखा जाता है ओपनिंग WDV, फर्स्ट वी राइट ओपनिंग WDV, ओके, एंड देन ओपनिंग WDV के बाद हम लोग लिखते हैं एड परचेजेस, और परचेजेस में हम लोग दो चीजें करते हैं, पुट टू यूज फॉर 180 days और मोर, and put to use for less than 180 days। ये दो चीजें हम लोग इधर क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ओके, और फिर ये जो बैलेंस अपने को मिलता है उस बैलेंस में से अपने को कुछ सब्ट्रैक्ट करना रहता है। क्या सब्ट्रैक्ट करना रहता है, सेल्स, दैट इज व्हाट, सेलिंग प्राइस। ये सेलिंग प्राइस हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर जो बैलेंस बचेगा उस बैलेंस के ऊपर डेप्रिसिएशन आता है। सो अकॉर्डिंगली अभी अगर इधर देखोगे तो उसका जो WDV है वो 3,20,000 रुपीज का है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, इट इज 3,20,000 रुपीज। तो हम लोग इधर लिखेंगे 3,20,000। ओके, फिर उन्होंने परचेज कब किया, परचेज किया 1 सितंबर को, बट पुट टू यूज कब किया, 1 नवंबर को। 1 नवंबर को किया, मतलब ऑब्वियसली इट इज लेस देन 180 डेज। कैसे सर, मैंने आपको क्लासरूम के अंदर, जब मेरे लेक्चर्स जिन्होंने सुने उनको पता है, मैंने आपको एक डेट दी हुई है 3 अक्टूबर। अगर मशीनरी 3 अक्टूबर या 3 अक्टूबर के पहले पुट टू यूज होता है तो वो 180 डेज और मोर वाले सिनारियो में चला जाता है, और 3 अक्टूबर के बाद अगर वो पुट टू यूज होता है तो वो लेस देन 180 डेज वाले सिनारियो में चला जाता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 50,000 रुपीज, 3,20,000 प्लस 50,000 रुपीज, इट विल कम टू 3,70,000। देन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस हम लोग ने इधर देखा 2 लाख रुपए का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो 2 लाख इसमें से हम माइनस कर देंगे, सो वी विल गेट 1,70,000 रुपीज। और आप 170 में से आप, मैंने आपको सिखाया हुआ है इसको कैसे बैलेंस में डिवाइड करते हैं। पहले हम लोग इधर लिखते हैं पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज वाला पार्ट। पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज वाला जो पार्ट है पहले हम लोग वो लिख देंगे। तो पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज इज हाउ मच, 50,000 रुपीज, और जो बैलेंस वाला पार्ट है वो इधर आ जाएगा। ओके, सो बैलेंस इज हाउ मच, 1,20,000 बैलेंस रिमेनिंग रहेगा। इस पे 15% का डेप्रिसिएशन और इस पे 7.5% का डेप्रिसिएशन लग जाएगा बेटा। So 50,000 into 7.5%, if you will calculate, you will get the answer as 3,750. And 1,20,000 into 15% अगर आप करोगे तो you will get 18,000 rupees. और अगर दोनों का टोटल आप करने जाओगे तो बेटा you will get the answer as 21,750. Okay, so this is our answer, 21,750. Okay, so by this question number 33 is also over. Question number 34, measures ABC and eligible assessee following a mercantile system of accounting carrying on eligible business of section 44AD provides the following details. Total turnover for the financial year 2021 is 130 lakhs. Out of the above, 25 lakh received by account pay check during the financial year 2021, 50 lakh received by cash during the financial year 2021.
25 lakh received by account payee bank draft before the due date of filing of return, and 30 lakh are not received till the due date of filing of return. What shall be the amount of deemed profit measures ABC under section 44 AD for the assessment year 21-22? So let us first talk about something 44 AD. Okay, what is 44 AD? किसके लिए available रहता है ये? So 44 AD is for all those people who are into the business. Okay? बट कमीशन वाला बिजनेस नहीं होना चाहिए, एजेंसी वाला बिजनेस नहीं होना चाहिए, 44A वाला बिजनेस नहीं होना चाहिए. ओके, प्रोफेशनल्स नहीं होने चाहिए. क्यों? क्योंकि प्रोफेशनल्स के लिए हमने क्या दिया हुआ है? 44AD दिया हुआ, एडी ए दिया हुआ, राइट ना. अगर आप 44AD का प्रोविजन लेना चाहते हो तो क्या क्या कंडीशन आपको रखनी पड़ती है कि आपका टर्नओवर जो है वो प्रीवियस ईयर के अंदर, प्रीवियस ईयर मतलब अगर मैं बात करूं अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है? 2021 है. प्रीवियस ईयर टर्नओवर शुड बी लेस देन और इक्वल टू 200 lakhs. ओके, 200 लाख मतलब 2 करोड़ तक का आपका टर्नओवर होना चाहिए. ठीक है, अगर आपका टर्नओवर ऐसा कुछ है तो फिर आपको क्या मिलेगा बेटा? आपको दो चीजें मिलती है इधर. अगर आपने पैसा कैश में रिसीव किया होगा तो 8% ऑफ द टर्नओवर, 8% मल्टीप्लाई बाय टर्नओवर जो है इतना बता दो आप, पीजीबीपी प्रॉफिट बता दो. कोई एक्सपेंस का डिडक्शन वगैरह नहीं मिलेगा. नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 32-38. कोई भी एक्सपेंस का डिडक्शन आप नहीं मांग सकोगे. ठीक है, अगर आपको अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही चेक या फिर बैंक ड्राफ्ट या फिर एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, भीम, ऐसे अगर मोड से अगर पेमेंट आया हुआ है, अगर आप ये मोड से अगर आपको पेमेंट आता है तो फिर आप उसका जो भी टर्नओवर रहेगा उस टर्नओवर का कितना परसेंटेज दिखाओगे? 6% आप दिखाओगे. 6% ऑफ द टर्नओवर विल बी काउंटेड एज व्हाट? पीजीबीपी इनकम. ओके, बट हाँ अगर ये चीज है तो फिर आपको ये चीज याद रखनी कि आपको जो पैसा है ये पैसा कब तक मिल जाना चाहिए? ये पैसा आपको मिल जाना चाहिए अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक. अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक मिल जाना चाहिए. अगर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक नहीं मिला तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो फिर जो पैसा ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक नहीं आया है उस पैसे पे 8% मल्टीप्लाई बाय टर्नओवर के हिसाब से क्या हो जाएगा? टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट हो. टैक्स लायबिलिटी मतलब अपना आपका पीजीबीपी इनकम गिना जाएगा. ओके, सो ये मैं शॉर्ट में आपको पीजी थोड़ा बहुत 44AD के बारे में बता दे रहा हूँ. ठीक है, अभी अगर हमारे क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है कि उनका जो टर्नओवर है वो 130 lakhs का है. 130 lakhs मतलब 1 करोड़ 30 lakhs है. इसमें से 25 लाख रुपया जो था ये उनको ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही आ गया था. और ये कैसे आया था? अकाउंट पे ही चेक से आया था. ओके, फिर जो दूसरा जो पैसा है दैट इज 50 लाख रुपीज जो है ये भी उनको ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही आया और ये पैसा उनको किस में आया? कैश में आया. फिर कुछ दूसरा अमाउंट की भी बात करी थी. 25 लाख रुपया जो आया वो बैंक ड्राफ्ट से आया. 50 लाख जो आया वो बैंक ड्राफ्ट से आया और ये अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक आ गया. और बैलेंस जो अमाउंट बचा वो बैलेंस अमाउंट अभी तक आया नहीं था. बैलेंस अमाउंट नहीं आया था मतलब 30 लाख नॉट रिसीव्ड टिल द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न. ओके, 30 लाख इज नॉट रिसीव्ड अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न. तो फिर अभी इसके लिए क्या करने का सर? 30 लाख के लिए व्हाट वी आर सपोज. ओके, तो ये 30 लाख के ऊपर बेटा कितना परसेंटेज? 8%. सो अभी देखना इधर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा. 25 इंटू 6%, 50 लाख इंटू 8%, 25 लाख इंटू अगेन 6% एंड 30 लाख इंटू 6%. सॉरी 30 लाख इंटू व्हाट? 8%, क्योंकि ये पैसा अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक नहीं आया. तो 25 इंटू 6% अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा 1.5. 50 इंटू 8% इफ यू विल डू इट विल गेट 4. 25 इंटू 6% you will get 1.5 and 30 lakhs into 8% will get 2.4. अगर आप बेटा सबका टोटल करोगे तो you will get the answer is 9.4 lakh. So 9.4 lakh will be considered as a income under section 44 AD for the assessment year 21-22. तो अभी इसका आंसर कहाँ पर है? Yes, this is the answer 9.4 lakh. I hope it is clear to you, right? प्लीज एक बार ये स्क्रीन को बराबर से देख लो भाई मैंने क्या क्या चीजें बोली थी और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये कैलकुलेशन हुआ है.
याद रखना, अगर आप मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो कर रहे हो, आपको पैसा जो वो एनईएफटी आरटीजीएस वाला जो फॉर्म है, उस फॉर्म में पैसा आपको कब तक आ जाना चाहिए, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक आ जाना चाहिए। अगर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक नहीं आया तो फिर जो भी बैलेंस बचा होगा उस बैलेंस के ऊपर हम 8% के हिसाब से क्या कर लेंगे, प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। सर क्या मैं 8% से ज्यादा दिखा सकता हूँ? आपकी मर्जी बेटा, 8% से ज्यादा भी दिखा सकते हो। क्या मैं 6% से ज्यादा दिखा सकता हूँ? आपकी मर्जी, आप 6% से ज्यादा भी दिखा सकते हो, इससे कम नहीं दिखा सकते। ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। मिस्टर शाहिद, अ होलसेल सप्लायर ऑफ अ डाइस प्रोवाइड्स यू विद द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द कैश पेमेंट he made throughout the year. 12 June 2020, loan prepayment of 27,000 taken for business purpose from his friend Kunal. The repayment also include interest of 5,000. इसने कुछ कैश पेमेंट्स किए हुए, 27,000 रुपए का कैश पेमेंट, repayment 27,000 taken for business purpose for his friend from his friend Kunal. The repayment also includes interest of 5,000 rupees. 19th of August 2020, portable die machinery purchase for 15,000, 15,000 रुपए के लिए पेमेंट किया है। द पेमेंट वॉज मेड इन कैश इन अ 3 वीकली इंस्टॉलमेंट। तो 15,000 डिवाइड बाय अगर आप 3 करोगे बेटा, तो यू विल गेट हाउ मच, 5,000 रुपीज। अब समझना जरा, 5,000 पर वीक है, मतलब एक दिन में वो 5,000 रुपए का ही पेमेंट करने वाला। ठीक है, देन 26th of January 2021, payment of 10,000 made to electrician due to unforeseen electric circuit at shop। तो ये 10,000 का पेमेंट है। ठीक है, 28th February 2021, परचेज मेड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर फॉर 13,500। तो अभी इसमें से क्वेश्चन ये उठता है कि कितने का डिसअलाउंस होगा यहाँ। व्हाट विल बी द डिसअलाउंस अंडर सेक्शन 44A3 if any, if Mr. Shahid opt to declare his income as per the provision of section 44AD। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इधर 2 मिनट के लिए रुक जाना, कुछ मत करना अभी। हाँ, तो डिक्लेयर हिज इनकम एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44AD। भाई वो ऑप्ट क्या कर रहा है, पहले वो चीज देखो, सेक्शन 44AD ऑप्ट कर रहा है। और 44AD को अगर आपने ढंग से पढ़ा हो, मतलब शायद आपने बुक पढ़ी हो, तो उसमें लिखा हुआ है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग। ओके, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग का मतलब होता है कि ये पूरे सेक्शन, पूरे पीजीबीपी को ओवरराइड करके निकलता है ये सेक्शन। मुझे पूरे पीजीबीपी को ओवरराइड करके ये सेक्शन निकलता है, मतलब जितने भी सेक्शन है सारे सेक्शन अप्लाई नहीं होंगे अगर ये 44AD आपने ऑप्ट कर लिया तो। क्यों सर, 44AD में आपको क्या करना होता है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, आपको क्या करना होता है, टर्नओवर का परसेंटेज देना होता है ना। तो फिर वहां पे तो कोई एक्सपेंस का डिडक्शन वैसे भी नहीं मिलने वाला है, तो जब एक्सपेंस का डिडक्शन मिलने ही नहीं वाला है तो फिर ये सारी चीजों को डिसअलाउ अलाउ बात ही नहीं उठेगा ना बेटा। तो आंसर विल बी व्हाट, नील। आंसर इज नील। क्योंकि 44AD पूरे के पूरे पीजीबीवी प्रोविजंस को क्या कर देता है, ओवरराइड कर देता है। तो 44AD में तो आपको क्या टर्नओवर के हिसाब से दिखाने का, कोई एक्सपेंस का डिडक्शन वगैरह आपको मिलने वाला है नहीं। तो इस पर्पस की वजह से यहाँ पे आंसर क्या हो गया, नील हो गया। आई होप इट इज क्लियर टू यू, राइट। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। For an SSC who is a salaried employee who invests in equity shares, what is benefit available in respect of securities transaction tax paid by him on sale and acquisition of 100 listed shares of X Limited, which has been held by him for 14 months before sale, which was held for 14 months before sale। तो आपको एसटीटी का क्या बेनिफिट होता है, अगर आपने एसटीटी, अब मैं बात करता हूं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों की। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, अभी शेयर्स है तो शेयर्स लिस्टेड कंपनी के शेयर्स के लिए कितना होता है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का पीरियड 12 महीने। ओके, 12 मंथ्स या एग्जैक्टली 12 मंथ या 12 मंथ से कम थी अगर आप होल्ड करके रखोगे तो शॉर्ट टर्म, उससे ज्यादा है तो फिर वो लॉन्ग टर्म माना जाएगा। एसटीटी, अगर वो शॉर्ट टर्म वाला केस है तो एसटीटी आपको सेल के टाइम पे भरना होता है, सेल के टाइम पे भरना बहुत जरूरी है। सेल के टाइम पे एसटीटी पे किया तो आपको बेनिफिट मिलता है, वो अंडर सेक्शन 111A का 15% के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, बट मैं यहाँ पे बात करता हूँ लॉन्ग टर्म की। लॉन्ग टर्म की क्यों बात कर रहे हो सर, बिकॉज 14 मंथ्स बिफोर द सेल उन्होंने हेल्ड करके रखे। 14 मंथ्स बिफोर द सेल मतलब 12 महीने से ज्यादा हो गया, 12 महीने से ज्यादा हो गया मतलब ये लॉन्ग टर्म हो गया। तो आपने बाय के टाइम पे भी एसटीटी पे किया होना चाहिए और सेल के टाइम पे भी एसटीटी पे किया होना चाहिए। बाय में कुछ जगह पे एसटीटी नहीं पे करोगे तो भी चलेगा। कौन कौन सी ऐसी जगह है, आईपीओ, एफपीओ, ओके, फिर बोनस इशू रहेगा, तो ये सब जगह पे अगर आप एसटीटी नहीं पे करोगे तो चलेगा, क्योंकि वहां पे तो आप थोड़ी मार्केट से खरीदने जाओगे।
तो बाई सेल का चीज हो गया। बाई सेल के टाइम पे अगर आपने एसटीटी पे किया होगा तो आपको एक बेनिफिट मिलता है। क्या बेनिफिट मिलता है? 112A का बेनिफिट आपको मिल जाता है। क्या मिल जाता है? 10% सिर्फ टैक्स देना पड़ता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, वो भी एक्सीडिंग ₹1 लाख पे। मतलब 1 लाख तक का आपको क्या दिया हुआ है? एग्जेम्पशन दिया हुआ है। 1 लाख तक के एग्जेम्पशन है। मतलब क्या, अगर मुझे 5 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो मुझे 1 लाख के ऊपर टैक्स नहीं आएगा, बैलेंस 4 लाख के ऊपर मेरे को टैक्स आ जाएगा। कितना परसेंट टैक्स आएगा? 10% के हिसाब से मेरे को टैक्स आएगा। तो अभी मैं वो ऑप्शन ढूंढूंगा जो ऑप्शन मैंने आपको अभी ये चीज पढ़ाई है। ओके, ए रिबेट अंडर सेक्शन 88E अलाउेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ, नहीं। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस फॉर ट्रांसफर एंड डिडक्टेड फ्रॉम सेल कंसिडरेशन, नो। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का डिडक्शन आपको नहीं मिलता है अगर आप कैपिटल गेन कैलकुलेशन करते हो तो। कैपिटल गेन्स विदाउट डिडक्टिंग एसटीटी इज पेड is taxable at a concessional rate of 10% on such capital gain exceeding ₹1 lakh. Yes, this is the correct answer. Okay, so ये अपना आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं 37 अंडर सेक्शन 54EC। 54EC किसके लिए था? लैंड बिल्डिंग अगर आप बेचोगे तो आपको इन्वेस्ट करना है पैसा। कहाँ पे इन्वेस्ट करना है? नहा या तो RECL के बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करना है। और वो इन्वेस्टमेंट कब तक कर लेना होता है? 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ, विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर की डेट के 6 महीने के अंदर अंदर आपको इन्वेस्टमेंट कर देना होता है। और उसका आपको मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलता है? 50 लाख रुपए तक का आपको मैक्सिमम डिडक्शन मिल जाता है। ओके, तो देखते हैं अभी इसमें क्या बोला है वो। 54EC कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ आर exempted इफ इन्वेस्टेड इन बॉन्ड्स इशूड बाय NHAI एंड RECL और अदर नोटिफाइड बॉन्ड। कब इन्वेस्ट करना होता है? विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months आफ्टर द डेट ऑफ सच ट्रांसफर। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। अपने को जो आंसर है वो फटाक से मिल गया तो फट से टिक कर देने का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 38 क्वेश्चन। 50 मिस्टर ए, एज 45 years, sold an agricultural land for ₹52 lakhs on 4th of October 2020, acquired at a cost of 49.25 lakhs on 13 September 2019। 13 सितंबर 2019 को खरीदा था और 4 अक्टूबर 2020 को बेच दिया। ओके, तो ये शॉर्ट टर्म रहेगा। पहले देखते हैं, ये एग्रीकल्चरल लैंड है तो वो अपने को लिमिट वगैरह सब देखना पड़ेगा। Situated at a 7 kilometer from the jurisdiction of municipality having the population of 4 lakhs। 4 लाख का पॉपुलेशन है और 7 किलोमीटर पे ये है। ओके, एंड ऑल्सो सोल्ड अनदर एग्रीकल्चर लैंड फॉर 53 lakhs on 12th of February 2020, acquired at a cost of 46 lakhs on 15th of February 2019, situated at 1.5 kilometer from the jurisdiction of municipality having a population of 12,000, what would be the amount of capital gain chargeable to tax in the hands of Mr. A for the assessment year 21-22? Cost of inflation index is given. Okay, so 13 सितंबर 2019 को खरीदा हुआ ये है। पहले इसकी बात करते हैं, इस पर्टिकुलर केस की। तो आपको पता होगा वो एक 6 to 8 किलोमीटर का एक सिनारियो है कि अगर पॉपुलेशन कितना है, लेस देन और इक्वल टू 1 लाख है, 6 to 8 किलोमीटर का एरिया अगर है उस म्यूनसिपालिटी बोर्ड से, ये 7 किलोमीटर है तो 6 to 8 किलोमीटर के अंदर तो आ जाएगा ये। और इसका पॉपुलेशन कितना है? 4 लाख का पॉपुलेशन है। तो बताओ ये बेटा क्या होगा? ये एग्रीकल्चर लैंड है या नहीं है? मतलब इसको क्या बोलोगे आप? यस, इट इज एग्रीकल्चरल लैंड। मोर देन 1 लाख का पॉपुलेशन उधर है तो ये रूरल एग्रीकल्चरल लैंड हो जाएगा। ओके, रूरल एग्रीकल्चर लैंड के केस में इसको हम लोग ले लेंगे। फिर नेक्स्ट वाला जो है वो 1.5 किलोमीटर का एरिया है और पॉपुलेशन कितना है? 12,000 का है। सो पॉपुलेशन 12,000 मतलब 10,000 से ज्यादा का पॉपुलेशन ये हो गया। ओके, तो 10,000 से ज्यादा का पॉपुलेशन अगर ये हो गया तो फिर अपने को इसको क्या मानना पड़ेगा? दिस विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट? अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड इसको माना जाएगा। और ये अर्बन एग्रीकल्चर लैंड हो गया तो इसको बेच के जो भी कैपिटल गेन आएगा उसका आंसर क्या रहेगा? टैक्सेबल। रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट अ कैपिटल असेट, सो कैपिटल गेन वहां पे कैलकुलेट नहीं होगा। तो अगर इसको देखें तो भाई अभी इसको परचेज कब किया था? 12 फरवरी 2020 को इसको बेचा है और 15th of Feb 2019 को इन्होंने खरीदा था। तो 53 - 49 46 सॉरी
53 minus 46, if you will calculate, answer is 7 lakh rupees. और डायरेक्टली क्यों कैलकुलेट कर लिया? बिकॉज बेटा लैंड है, लैंड के लिए कितना पीरियड है? होल्डिंग पीरियड 2 साल का होल्डिंग पीरियड होता है, 2 years का होल्डिंग पीरियड होता है लैंड के लिए. ओके, सो 7 lakh will be considered as a capital gain, that is short term capital gain of 7 lakh rupees. ओके, आगे बढ़ते हैं. 39. Mr. Kashyap has acquired a building from his friend on 10th October 2020 for rupees 15 lakh. The stamp duty value of the building on the date of purchase is 16 lakh 20,000. Income chargeable to tax in the hands of Mr. Kashyap. Mr. Kashyap ने परचेस किया हुआ है तो 56 to 10 इधर बीच में आएगा अपने को. और 56 to 10 के अंदर क्या बोला था कि अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप परचेस करते हो फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो फिर अगर उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और एक्चुअल कंसिडरेशन के बीच का जो डिफरेंस है वो 50,000 रुपए से ज्यादा हो जाएगा, तो ये अमाउंट जो है वो क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी, प्रोवाइडेड योर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज एक्सीडिंग 110% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन. तो पहली कंडीशन है वो ये चेक करना पड़ेगा कि ये चीज हो रही है या नहीं हो रही है, और फिर ये वाली चीज पे. ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना है. स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो 16,20,000 रुपए है, माइनस एक्चुअल कंसिडरेशन कितना है? 15 लाख का है. तो भाई 1,20,000 रुपया है. 1,20,000 इज मोर देन 50,000, तो ये टैक्सेबल तो होगा. ओके, बट टैक्सेबल होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करेगा ये सेकेंड वाली कंडीशन पे. तो सेकेंड वाली कंडीशन को देखते हैं. ये 16,20,000 का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, 110% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन, मतलब 15 लाख का 110%. 15 लाख का 110% आप कैलकुलेट करोगे तो बेटा वो होता है 16,50,000. और अभी यहाँ पे अपने को साइन चेंज करना होता है क्योंकि ये क्या है? ये कम है भाई. स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो इससे क्या है? कम है. 16,20,000 इज लेस देन 16,50,000 रुपीज, तो फिर ये अमाउंट टैक्सेबल होगी नहीं. तो आंसर विल बी व्हाट? निल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की अगर बात करें तो 40 में क्या बोला हुआ है? मिस्टर एक्स एज 61 years received dividend of rupees 12 lakh from ABC Limited in the previous year 2021. Interest on loan taken for the purpose of investment in ABC Limited is 3 lakh. Income included in the hands of Mr. X for the previous year 2021 would be what? अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, शायद आपने ये चीज बहुत गौर किया होगा तो पढ़ी होगी, नहीं गौर किया होगा तो ये चीज शायद दिमाग में से निकल गई होगी. ओके, देखो यहाँ पे जरा क्वेश्चन नंबर 40 पे ध्यान दो. डिविडेंड इनकम की बात कर रहा है. Okay. Now as we know that from the previous year 2020 onwards, गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है? जो डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी था, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी जो था उसको क्या कर दिया इन्होंने? टैक्सेबल कर दिया. पहले ये क्या था? एग्जेम्प्ट था. पहले ये जो डिविडेंड था ये क्या था? एग्जेम्प्ट था. एग्जेम्प्ट कौन से सेक्शन में था? अंडर सेक्शन 1034, सब्जेक्ट टू एक सेक्शन था जिसको बोलते थे 115BB ओके, बट ये चीज अभी अपने कोई काम की रही नहीं. क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर 2020 ऑनवर्ड्स डिविडेंड क्या हो गया? टैक्सेबल हो गया. तो डिविडेंड टैक्सेबल हो गया तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई डिविडेंड से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस जो है वो आपको डिडक्शन मिलेंगे नहीं. एक्सपेंसेस का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा. एक्सपेंसेस का डिडक्शन मतलब माइनस करने नहीं मिलेगा, वो बात थी. ठीक है, बट गवर्नमेंट ने एक जगह पे रिलैक्सेशन दिया. कौन सी जगह पे रिलैक्सेशन दिया? इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर. अगर आपने उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है और इन्वेस्ट करने के टाइम पे आपने लोन लिया था और वो लोन का पैसा आपने ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लिया हुआ है, तो उस लोन के ऊपर जो भी आप इंटरेस्ट चुकाओगे उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा. बट वो डिडक्शन भी कितना मिलेगा? तो उस डिडक्शन के लिए गवर्नमेंट ने बोला था 20% ऑफ द डिविडेंड रिसीव्ड. 20% ऑफ द डिविडेंड रिसीव्ड, मैक्सिमम इतना ही मिलेगा. इसका बोलने का मतलब क्या है? 20% ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड और द इंटरेस्ट एक्सपेंसेस विच एवर इज लोअर, इतना आपको क्या मिल जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा. ठीक है, तो अभी हम लोग इसके बात करते हैं. भाई कितने का डिविडेंड मिला है? 12 लाख का डिविडेंड मिला है. 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 20% आप करो बेटा, कितना होता है? 2,40,000 रुपया होगा. एंड एक्चुअल एक्सपेंसेस कितना है? एक्चुअल इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है?
एक्चुअल इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 3 लाख रुपीज। तो पूरा का पूरा डिडक्शन तो नहीं मिलेगा बेटा, कितना मिलेगा, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर मतलब कितना, 2,40,000। तो डिविडेंड की टैक्सेबल अमाउंट क्या होगी, डिविडेंड टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल्स टू 12 lakh minus 2.4 lakh, 12 lakh minus 2.4 lakh, if you will count, it will amounts to 9,60,000. So answer will be what, 9,60,000. I hope so it is clear to you, right? जी मेरे से जितना हो सकता है उतना मैं नॉलेज इम्पार्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ, कम से कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मैं शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। विद रिस्पेक्ट टू एमसीक्यू, जितना भी थियरी में एक्सप्लेन कर सकता हूँ उतना थियरी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिकॉज हो सकता है कि एमसीक्यू के अंदर तुमको आंसर तो आ जाता हो बट पता नहीं चलता हो कि ये आंसर आया कैसे, या तो फिर वो आंसर का लॉजिक क्या है। ठीक है, मेरा पर्पस, ये वीडियोस बनाने का पर्पस एक ही था कि आंसर के लॉजिक पता होने चाहिए। बिकॉज सी आंसर तो तुम किधर से भी निकाल लोगे भाई, पीछे बुकलेट के अंदर पीछे भी आंसर्स दिए हुए, तो पीछे आंसर दिए हुए, बट वो आंसर का लॉजिक क्या है, सर ए आया, बी आया, सी आया, उसका लॉजिक क्या है, तो उस लॉजिक के लिए वी आर डिस्कसिंग ऑल दिस स्टफ। ओके, प्लीज प्लीज एक रिक्वेस्ट है, अगर आप, मैं बार बार ये चीज क्यों बोलता हूँ, बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं बेटा जो सेल्फ स्टडी भी कर रहे होंगे, आप शायद आपने कोचिंग ली होगी नहीं ली होगी, डजंट मैटर, बट बहुत सारे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो सेल्फ स्टडी भी कर रहे होंगे। तो अगर वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उनके साथ प्लीज इस वीडियो को शेयर करो, आपके लाइब्रेरी ग्रुप या जो भी ग्रुप्स है उस सारे ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करो, सो दैट दे कम टू नो कि सजेस्टेड आंसर्स के कंसेप्चुअल आंसर्स कैसे। ओके, वो भी शायद आपकी तरह कर रहे होगे ए बी सी डी, इसका आंसर ए आएगा, इसका आंसर बी आएगा, इसका आंसर सी आएगा, बट उनको पता नहीं रहेगा कि ए क्यों आया, बी क्यों आया, सी क्यों आया। तो फॉर दैट पर्पज आई एम टेलिंग यू, प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। Okay, you can take a break of 5 minutes and then you can see this video again for the case scenario starting from question number 16 to question number 20. Okay, look at to question number 16 now. 15 तक तो हमारे केस सिनारियो हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं अभी। Sir Rajesh gifted 15 lakh to his wife Ravi on her birthday on 23rd of February 2020. Ravi lent 6 lakh out of his gift amount to Karuna on 1st April 2020 for 6 months, on which she received interest of 30,000. Okay. The said sum of 30,000 was invested in the shares of a listed company on 18th of October 2020, which were sold for 66,000 on 25th of March 2021. जब इतना बड़ा केस सिनारियो हो ना बेटा, तो सबसे पहले क्या करने का, थोड़ा बहुत जो चीजें तुमको समझ में आ रही है वो चीजों को लिख लेने का इन द सेंस व्हाट, उससे क्या हेल्प हो जाता है, उससे एक ही हेल्प हो जाती है कि अगर ग्राफिकल फॉर्मेट में होगा, मतलब चार्ट फॉर्मेट में अगर होगा, तो आपको क्वेश्चन के आंसर्स लिखने में बहुत आसानी होगी। तो राजेश गिफ्टेड 15 लाख टू हिज वाइफ रावी, जो राजेश भाई है उन्होंने क्या किया, गिफ्ट किया, किसको गिफ्ट किया, रावी को गिफ्ट किया। कितना गिफ्ट किया, 15 लाख गिफ्ट किया उन्होंने। ओके, 15 लाख उन्होंने गिफ्ट किया, एंड रावी लेंट 6 लाख आउट ऑफ दिस गिफ्ट अमाउंट टू करुणा ऑन 1st April 2020। फिर रावी ने क्या किया, इस 15 लाख में से 6 लाख रुपया जो है वो करुणा को दे दिया। करुणा को क्या दिया सर, एज अ लोन दे दिया। तो इस लोन के ऊपर उन्होंने क्या कमाया, 30,000 का इंटरेस्ट कमाया। She earned interest of 30,000 rupees invested in the shares, and the said amount 30,000 was invested in the shares of a listed company। और फिर ये जो 30,000 मिला, इस 30,000 को क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। कहाँ इन्वेस्ट किया सर, इसको इन्वेस्ट किया शेयर्स में। ओके, एंड विच वर सोल्ड फॉर 66,000। और फिर ये शेयर्स को क्या किया उन्होंने, ये शेयर्स को इन्होंने सेल कर दिया। कितने में सेल किया, 66,000 में सेल किया ऑन 25th March 2021।
Security transaction tax was paid on purchase and sale of such shares. The balance amount of a gift was invested on 1st April 2020 as a capital by Ravi in her new business. Balance amount मतलब 9 लाख रुपीस. 9 लाख रुपीस को क्या किया रावी ने इन्वेस्ट किया. Investment into business on a very first day, that is 1st April 2020. Okay. He suffered a loss of 22,000 in the business in financial year 2021. उनको 22,000 रुपए का लॉस हुआ है बेटा. Ravi is working with the private company as a sales executive at a salary of 62,000 per month. She paid 3,500 per month toward the tuition fees for her daughter Riya studying in St. Thomas School, Mumbai. Rajesh is working with MNC on a monthly salary of 64,000. He has gifted 1,25,000 to Riya on her 13th birthday. This amount is deposited as a 2-year term deposit with SBI Bank in her name, on which interest of 11,500 is earned during the previous year 2021. Both Mr. Rajesh and Mrs. Ravi opt to pay tax under section 115 BAC. इन दोनों ने 115 BAC में opt करके रखा हुआ. Based on the fact of the case scenario given above, choose the most appropriate answer to the following questions. Number 1. In whose hand the interest income received from Karuna and interest on fixed deposit in the name of Riya would be included? तो सबसे पहले बात करते हैं भाई मिस रावी को जो पैसे दिए थे उसकी. कितना पैसा दिया था? 15 लाख. ये 15 लाख आपने क्या किया, मतलब मिस रावी ने क्या किया, 6 लाख रुपया दिया किसको? करुणा. उससे क्या कमाया बेटा? इंटरेस्ट कमाया. इंटरेस्ट कमाया तो ये इंटरेस्ट के अंदर आपको क्लबिंग वाली फीलिंग नहीं आ रही क्या? उन्होंने पैसे दिए, उस पैसे को आपने किधर इन्वेस्ट किया और उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपने इंटरेस्ट कमाया, तो उस इंटरेस्ट को जो भी अमाउंट आएगा वो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर. इस केस में ट्रांसफरर कौन है? राजेश. तो वो राजेश के हाथ में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल. तो सर ये जो इन्वेस्ट करके जो शेयर्स में बाद में पैसा कमाया रहेगा वो कैपिटल गेन जो आएगा वो नहीं होगा? नहीं, वो एक्रेडिटेड इनकम है. एक्रेडिटेड इनकम मतलब इनकम ऑन इनकम. अगर आपको याद हो क्लबिंग पढ़ा होगा तो क्लबिंग के अंदर है कि इनकम के ऊपर इनकम जो आती है वो टैक्सेबल नहीं होती है. ओके, सो ये जो सिर्फ इनकम है ये इनकम टैक्सेबल हो जाएगी. तो 30,000 विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर राजेश. ओके, अब बात करते हैं दूसरी. देखो भाई इनकी सैलरी जो है वो 62,000 पर मंथ है और ये 3,500 टुवर्ड द ट्यूशन फीस भर रही है. वो छोड़ो, वो जाने दो. 62,000 की सैलरी है. वो 22,000 का इन्होंने लॉस भी कुछ किया हुआ है. वो लॉस भी वो राजेश के अकाउंट में चला जाएगा. क्यों? क्योंकि कंसीडर करो ना कि ये पूरा का पूरा 9 लाख कैपिटल बिजनेस में राजेश ने इन्वेस्ट किया हुआ है. तो जब ये पैसा ही राजेश का है तो ये पूरा का पूरा लॉस जो है उस पर हक भी किसका बनेगा? राजेश का ही बनेगा. तो ये 22,000 का लॉस भी क्लब किसके हाथ में होगा? राजेश के हाथ में होगा. ओके, अब ये 1,25,000 रुपया जो गिफ्ट दिया, फिर उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आया 11,500 का और इसकी सैलरी 64,000 की है. तो सिंस बोथ आर वर्किंग तो ये देखा जाता है कि कौन सा पेरेंट्स की ज्यादा इनकम है. तो यहाँ पे राजेश एंड रावी दोनों में से ज्यादा इनकम किसकी अपने को नजर आ रही है? तो नजर आ रही है अपने को राजेश की इनकम. तो ये जो इंटरेस्ट इनकम दोनों ही जो है वो किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा? राजेश के हाथ में. बराबर. अभी कैपिटल गेन की इनकम भी है उनको, तो वो इनकम भी अपने को देखना पड़ेगा पहले. In whose hands the interest income received from a Karuna and interest on fixed deposit in the name of Riya would be included. तो रिया की जो है इनकम वो किस में इंक्लूड हो जाएगी? तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, पहले दोनों की इनकम्स निकाल लेते हैं. ठीक है, सो दैट विल कम टू नो कि वो कितना कितना इनकम है. ठीक है, तो पहले राजेश की बात करते हैं हम लोग. राजेश के पास कौन सी इनकम आने वाली है? ओके, सो कंक्लूजन जो है वो सिर्फ हम लोग ये सैलरी वाली इनकम पे नहीं दे सकते. तो दैट इज वाई हम लोग क्या करेंगे, ये राजेश का नहीं बट इनकम कैलकुलेट करेंगे हम लोग. अब अगर मैं यहाँ पे राजेश की बात करता हूँ,
और यहाँ पर रावी की अगर मैं बात करूँ तो इसकी इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी हो जाएगी, इसकी है कुछ 64,000 इंटू 12 और इनकी है कुछ 62,000 इंटू 12। 64,000 इंटू 12 इफ वी काउंट 7,68,000। कोई डिडक्शन इनको नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि इन्होंने ऑप्ट किया हुआ है। 7,44,000 इनकी इनकम हो गई। फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है नहीं, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन यहाँ पे 22,000 का लॉस इसका बुक करना पड़ेगा अपने को। कैपिटल गेन की इनकम इसमें है 30,000 इन्होंने इन्वेस्ट किया था और 66,000 का प्रॉफिट इन्होंने कमाया है, सोल्ड फॉर 66,000। ओके, तो 66 minus 30 if you will do, it will come to 36,000 rupees। so capital gain का इनकम आ जाएगा। एंड देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इधर 30,000 का क्लबिंग हो जाएगा, इधर यहाँ पे रावी का इंटरेस्ट। तो 30,000 में से ये 22,000 का लॉस आप माइनस कर दोगे तो इनकम आ जाएगी यहाँ पे 8,000 की। इफ यू विल काउंट 7,68,000 प्लस 8,000 रुपीज, तो ये हो जाएगा बेटा 7,76,000। and 7,44,000 plus 36,000 if you will do, this will be come to 7,80,000। तो दिस इनकम इज हायर, तो 11,500 जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और 1032 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, वाई? बिकॉज दे ऑप्ट फॉर सेक्शन 115 BAC। so both interest income included in the hands of Rajesh, no. Both interest income to be included in the hands of Ravi, no. Interest income of Karuna to be included in the hands of Miss Ravi. Interest on 2-year term deposit in the hands of Rajesh, no. Interest income from Karuna to be included in the hands of Mr. Rajesh, yes. Interest on 2 years term deposit to be included in the hands of Mrs. Ravi, yes. This is the correct option. Okay, so A is the correct one, sorry, D is the correct one. Okay, go to the next one. In whose hands loss from business and capital gains would be included in the assessment year 21-22? Assume that capital invested in the business was entirely out of the funds gifted by her husband। as I told you earlier कि हम लोग ने पहले assumption ले लिया वो चीज कि उन्होंने पूरा इन्वेस्ट किया होगा, बट as they are saying over here, तो भाई लॉस पूरा का पूरा ही राजेश के पास चला जाएगा, राजेश के हैंड में। एंड इंटरेस्ट इनकम जो है, तो लॉस फ्रॉम बिजनेस जो है वो पूरा का पूरा राजेश के हाथ में क्लब हो जाएगा। कैपिटल गेन क्लब नहीं होगा, एक्रेडिटेड इनकम है वो। ओके, एडिशनल इनकम है, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट है वो। ओके, तो वो चीज यहाँ पे नहीं आएगी। सो करेक्ट आंसर विल बी बोथ लॉस फ्रॉम बिजनेस एंड कैपिटल गेन would be included in the hands of Rajesh, no. Both loss from business and capital gain would be included, Ravi, no. Loss from business included in the hands of Mr. Rajesh and capital gain included in the hands of Mrs. Ravi, yes. Okay, so this is accretion of income। capital gain जो है वो accretion of income है, that is income on income, that's why it is not included in the hands of Mr. Rajesh। Okay, what would be the total income of Mrs. Ravi for the previous year 2021? Just now we have calculated everything। 7,80,000 प्लस 11,500 आप करोगे, सो विल गेट 791,500 दिख रहा। सो 791,500। सर उन्होंने ट्यूशन फीस भरी थी, वो डिडक्शन नहीं लेंगे क्या? बेटा डिडक्शन नहीं मिलेगा ना, क्योंकि ATC का डिडक्शन है वो। एंड इफ यू ऑप्ट फॉर सेक्शन 115 BAC देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर सच डिडक्शंस। What would be the total income of Mr. Rajesh for the previous year 2021? Just now we have calculated 7,76,000। तो 7,76,000। कोई भी की हुई मेहनत पानी में नहीं जाती है, हर चीज अपने को काम में आई है। ओके, सो कभी भी क्वेश्चन करो केस सिनारियो बेस्ड, तो ऐसे ही किया करो सो दैट आपको इजी वे के अंदर सारे आंसर्स भी हो जाए और आपका टाइम भी उतना बच जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। मिस हेतल ट्रांसफर टू his husband Mr. Hemant a residential property worth rupees 45 lakhs located in a Nagpur without any consideration। तो वापस से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मिस हेतल ने यहाँ पे ट्रांसफर किया है उसके हस्बैंड को एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी विदाउट एनी कंसिडरेशन। तो यहाँ पे क्लबिंग नहीं बेटा, यहाँ पे डीम्ड ओनर का कंसेप्ट अप्लाई हो जाता है, दैट इज सेक्शन 27 का।
ओके, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में से। तो यहाँ पे अभी भी भले इसको हस्बैंड को ट्रांसफर किया हो, बट अगर कोई रेंटल इनकम वगैरह रहेगी तो वो मिस हेतल के हाथ में टैक्सेबल होगी। द एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ सच प्रॉपर्टी इज 5 लाख, म्युनिसिपल टैक्स इज 5,000 पेड फॉर हिज हाउस प्रॉपर्टी, पेड फॉर दिस हाउस प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021। Miss Hetal has 3 residential house property in Mumbai. Oh, ho. The expected rent from 3 properties situated in Mumbai is 10 lakh, 11 lakh and 12 lakhs respectively. Then she purchased the properties out of her own funds. Municipal taxes due, pay नहीं किया है, due है 15,000, 20,000 and 25,000. The same have however not been paid this year in respect of 3 properties. Expected rent is lesser than the standard rent in case of all the aforementioned properties. Miss Hetal does not have any income from any other sources. बाकी उनके पास कोई इनकम नहीं है। Miss Hetal's father, Miss Hetal's father, aged 58 years, had a capital gain of 5 crore from the sale of the property. He reinvested the proceeds from sale in another residential house of 4.98 crore, and the remaining sale proceeds were deposited in his saving bank account. He paid 1,50,000 toward the LIC premium. He has no other source of income. ये तो फादर की बात की है उन्होंने, ये फादर का बातचीत किया उन्होंने। नेक्स्ट वन, मिस हेतल्स ग्रैंडफादर। अभी ये ग्रैंडफादर का बातचीत है। Miss Hetal's grandfather is age 81 years and has interest income on fixed deposit of 6 lakh. He has to fly to USA for his treatment of cancer on 31st of July 2021 and is written for his treatment of cancer on 31st July 2021 and his return of income is not filed before his flying to USA. Based on the fact of the case scenario given above, choose the most appropriate answer to the following. What is the amount of income liable to be taxed in the hands of Miss Hetal under the head income from house property for assessment year 21-22? तो अभी अगर आप केस अगर ध्यान से देखो तो मिस हेतल के पास टोटल 4 प्रॉपर्टी है। कैसे सर? 3 प्रॉपर्टी जो मुंबई के अंदर है वो, और 1 प्रॉपर्टी जो उन्होंने अपने हस्बैंड को ट्रांसफर की है वो। अब इस 4 में से आपको पता है कि अपने को जो मिलता है एग्जेम्पशन वो 2 हाउस प्रॉपर्टी के रिलेटेड में मिलता है। 2 house property will be considered as self-occupied property and the remaining 2 will be taxable as a deemed let out. Okay, तो अपने को कैसे पता चलेगा कि कौन सी 2 हाउस प्रॉपर्टी को वो डीम लेट आउट करेंगे, क्या करेंगे? तो ये चीज अपने को देखनी पड़ेगी। तो कैसे देखे सर? तो देखो बेटा, अब यहाँ पे चारों की चारों हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे दी नहीं है, तो कहना इसे जीएवी विल बी द एक्सपेक्टेड रेंट ओनली। ओके, हाउस प्रॉपर्टी 1, हाउस प्रॉपर्टी 2, हाउस प्रॉपर्टी 3, हाउस प्रॉपर्टी 4। ओके, जीएवी अपने को यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी, एक्सपेक्टेड रेंट सारी प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट बोला गया अपने को। इसका एक्सपेक्टेड रेंट इज 5 लाख रुपीज, तो विल राइट ओवर हियर दिस इज 5 लाख। देन 10, 11, 12 lakhs, 10 lakh, 11 lakh and 12 lakh rupees. म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, म्युनिसिपल टैक्स सिर्फ इसका एक केले का पे किया हुआ है। 5 lakh म्युनिसिपल टैक्स वाज 5,000 पेड फॉर दिस प्रॉपर्टी, 5,000 रुपीज। बाकी का पेमेंट नहीं हुआ है मतलब ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, NAB हो जाएगी। 4,95,000, then this is 10 lakh rupees, this is 11 lakh and this is 12 lakh। इंटरेस्ट ऑन लोन का झमेला नहीं है, बहुत अच्छी बात है। सीधा डिडक्शन ले लेंगे 30% का, 30% ऑफ NAV 4,95,000 इंटू 30% माइनस कर दोगे तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे है, मैं अमाउंट्स लिखते जाता हूँ। 3,46,500, 10 lakh minus 30%, 7 lakh rupees। 11 lakh minus 30%, 7,70,000 rupees, and 12 lakh minus 30% will get 8,40,000 rupees।
अब इसमें से कोई भी 2 हाउस प्रॉपर्टी को अपने को सेल्फ ऑक्यूपाइड बताना है और 2 हाउस प्रॉपर्टी को अपने को क्या बताना है, लेट आउट बताना है। ऑब्वियसली जिसकी ज्यादा इनकम होगी, जिस हाउस प्रॉपर्टी की ज्यादा इनकम होगी उसको हम लोग क्या बता देंगे, एसओपी बता देंगे। तो ये दोनों प्रॉपर्टी को हम लोग क्या डिक्लेयर कर देंगे, एसओपीआर डिक्लेयर कर देंगे। सर आपने ज्यादा डायरेक्टली क्यों बोल दिया, बेटा इंटरेस्ट मैंने पहले ही बोला इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है, एडवांटेज है। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन होता तो वो सब झमेला करना पड़ता, 2 लाख वाला, अनलिमिटेड इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्शन वाला, वो सब करना पड़ता है। वो करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर इन दोनों को एसओपीआर डिक्लेयर कर देंगे तो फिर ये फर्स्ट 2 प्रॉपर्टी जो है ये क्या बन जाएगी अपने लिए, डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टीज बन जाएगी। और डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी बन गई, दोनों का टोटल कर दो, 10,46,500 विल बी द टैक्सेबल इनकम। तो देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं है। यस इट इज देयर इन आवर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, 10,46,500 विल बी द इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What would be the tax liability of Miss Hetal for the assessment year 21-22? Compute in a manner so that her tax liability is minimum. Tax liability is minimum उन्होंने बात की हुई है, तो मिनिमम अगर वो बोल रहे तो फिर अभी अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो सी नाउ अगर हम लोग ऐसे देखें तो 10,46,500 की इनकम उनकी बन रही है सर। ओके, और आपको पता है कि अगर वो नॉर्मल प्रोविजन में जाएंगे तो 10,46,500 पे टैक्स कैसे लगेगा, अप टू 10 लाख तो अपने को पता है कि 1,12,500 आने ही वाला है। एंड नेक्स्ट जो 46,500 बचेगा उसके ऊपर 30% के टैक्स के हिसाब से 13,950 एक्स्ट्रा, तो प्लस 1,12,500 विल बी गेटिंग 1,26,450 और इसमें 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हम लोग ऐड कर देंगे, सो विल गेट 1,31,508 मतलब 550। ओके, तो ये इतना टैक्स लायबिलिटी आ रहा है। बट अभी यहाँ पे तो इनको इंटरेस्ट डिडक्शन वगैरह है नहीं, तो ये सीधा अगर 115 बीएससी ऑप्ट कर ले तो भी चलेगा। ओके, और 115 बीएससी में स्टैंडर्ड डिडक्शन से कुछ रिलेटेड नहीं होता है वहां पर। ओके, स्टैंडर्ड डिडक्शन तो आपको वैसे भी मिलने वाला है। तो फर्स्ट 2,50,000 पे तो आपको क्या है 0% टैक्स है। नेक्स्ट 2,50,000 पे आपको क्या है 5% टैक्स आएगा। नेक्स्ट 2,50,000 पे क्या आएगा 10% टैक्स आएगा। नेक्स्ट 2,50,000 पे क्या आएगा 20% टैक्स आएगा। ओके, एंड नेक्स्ट 46,500 पे आपको क्या आएगा, नॉट 20%, इधर 15%, सॉरी इधर 15% और यहाँ पे 20% आपको टैक्स आ जाएगा। ओके, तो ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 12,500, ये हो जाएगा 25,000, यहाँ पे 2,50,000 इंटू 15% इफ यू विल डू यू विल गेट 37,500 एंड 46,500 का 20% इफ यू विल काउंट यू विल गेट 9,300. Let us take a total of it. We'll be getting 84,300, and if we add 4% into it, so we will be getting 87,670 rupees. So 87,670 will be considered as our tax liability. Okay, so ये beneficial है उनको, तो ये चीज अपने ऐड कर दी। ओके, ये उनको बता दिया भाई ऐसे टैक्स भरो, वैसे भी आपको कोई डिडक्शन वगैरह का कुछ फायदा तो है नहीं, तो 115 बीएससी ऑप्ट कर लो, चलेगा। नेक्स्ट, is Hetal's father required to furnish the return of income in India for the assessment year 21-22? तो अभी यहाँ पे हेतल के फादर की बात करते हैं हम लोग अगर, तो आप ध्यान से देखना हेतल के फादर को क्या हो रहा है। एज 58 years, capital gain of 5 crore from the sale of the property, reinvested in the proceeds of sale in 4.98 crore। तो अभी आप यहाँ पे क्या बोलोगे पता है सर, 5 करोड़ माइनस 4.98 करोड़, सो 5 माइनस सर 4.98 करोड़ मतलब 0.02 करोड़ मतलब 2 लाख के करीब की सर इनकम है, लेस देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, तो इनको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, ऐसा आपका बोलना होगा। बट अगर ऐसा आप बोलोगे तो ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये जो एग्जेम्पशन उनको मिला है बेटा वो एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 54 के अंदर होगा। एम आई करेक्ट?
और अगर आपको सेक्शन 139(1) ढंग से याद हो तो सेक्शन 139(1) के अंदर क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 139(1) बोलता है कि आपको ग्रॉस टोटल इनकम देखनी है एंड उस ग्रॉस टोटल इनकम में भी बिफोर क्लेमिंग एनी एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54, 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G, GB, वो सारे एग्जेम्पशन क्लेम करने के पहले। तो अभी तो 2 लाख दिखेगा, बट क्लेम करने के पहले कितना दिख रहा है, 5 करोड़ दिख रहा है। एंड 5 करोड़ इज मोर देन व्हाट, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से अगर ये ज्यादा है तो फिर तो इनको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो जाएगा, मतलब इनको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, no he is not required since exempt does not exceed basic exemption, no he is required to furnish a return of income on or before 31st July 2021, yes उनको फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, is Miss Hetal's grandfather required to pay advance tax during the previous year 2021? ओके तो वापस चलो ऊपर, ग्रैंडफादर है बेटा, ग्रैंडफादर, हितल्स ग्रैंडफादर, एज कितनी है, 81 ईयर्स। 81 ईयर्स अगर एज हो गई तो ये क्या बन गए, सीनियर सिटीजन बन गए। एंड इफ यू रिमेंबर द रूल ऑफ एडवांस टैक्स फॉर सीनियर सिटीजन, अगर आप सीनियर सिटीजन हो और आपकी इनकम अगर बिजनेस प्रोफेशन से नहीं है, इफ यू आर नॉट हैविंग एनी इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, ये हेड से अगर आपकी इनकम नहीं है तो फिर आपकी इनकम भले ना करोड़ों में क्यों ना हो, आपको एडवांस टैक्स प्रोविजन अप्लाई नहीं होता है। तो यहाँ पे इन बंदे को जो इनकम है, फिक्स डिपॉजिट से इनकम है 6 लाख रुपए की, तो ये 6 लाख रुपया थोड़ी ना बिजनेस इनकम में जाता है, बिजनेस में नहीं जाता है, तो फिर यहाँ पे इनको एडवांस टैक्स से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग क्या बोलेंगे, नो ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स सिंस ही इज अ सीनियर सिटीजन। हिस्सा ये पार्शियली ट्रू हो जाएगा, ओके तो ये गलत है। Yes, he is required to pay advance tax since tax liability exceed 10,000. No, he is not required to pay advance tax since he is a senior citizen and he is not having any income under the head profit and gains from business profession. Yes, this is the complete answer. So option is C. अब देखो फर्स्ट वाला भी एक बार के लिए पढ़ के ऐसा ही लगेगा, हाँ ये भी करेक्ट है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा आंसर है, सी है। ओके सो दिस इज द केस, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। 18 क्या बोल रहा है सर, मिस चंचल एज 45 प्रोवाइड्स फॉलोइंग डेटा फॉर हर ग्रॉस रिसीट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 and 2021. She is engaged in agency business along with providing services as a tarot card reader. Receipt from business is given, receipt from profession is given, total gross receipts is given. Assess financial year 2019-20 and 2021. 1 crore 5 lakh, 98 lakh, 47 lakh, 49 lakh, 1 crore 52 lakh, 1 crore 47 lakh. He paid an amount of 12 lakh to a contractor for polishing her old furniture in her self-occupied residential house property on 12th of April 2020. Further, on 5th of June 2020, she has taken services from renowned interior designer for the same residential house property for which she paid 2,50,000. Further, on 28th May 2020, she sold one commercial property for 50 lakhs. The stamp duty value on the date of registration is 58 lakhs. The value adopted for stamp duty was 54 lakh on the date of agreement. Part of payment by account pay check was received on the date of agreement. अकाउंट पे चेक से थोड़ा पैसा उनको आ चुका था डेट ऑफ एग्रीमेंट। इट वाज परचेज फॉर 40 lakhs on 28 June 2018. The brought forward long term capital loss from the unlisted share for financial year 1920 is 5,50,000. बहुत कुछ बोल दिया इन्होंने। During the year, Miss Chanchal incurred a loss of 70 lakh while trading in the agricultural commodity derivatives. No CTT paid. Agriculture कमोडिटी डेरिवेटिव पे वैसे भी सीटीटी नहीं होता है, एग्जाम्पशन दिया हुआ है उनको इस चीज के लिए, पीजीबीपी के अंदर शायद तुमने ये चीज पढ़ी हो। एंड मिस चंचल डज नॉट वांट टू ऑप्ट फॉर न्यू टैक्स रिजीम अवेलेबल अंडर सेक्शन 115 बीएससी फॉर असेसमेंट ईयर 21-22।
Based on the fact of the case scenario given above, choose the most appropriate answer to the following questions. Is Ms. Chanchal liable to tax audit under the Income Tax Act 1961 for the previous year 2021? तो हम लोग को ऊपर जाके देखना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर 2021 की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो प्रीवियस ईयर 2021 के अंदर देखो, रिसीट फ्रॉम बिजनेस कितना है 98 लाख से, एंड रिसीट फ्रॉम प्रोफेशन कितना है 49 लाख। अगर आपको याद होगा, बिजनेस की लिमिट जो है वो 1 करोड़ की है। अगर आपका कैश रिसीट वगैरह अप टू 5% है, तो आपकी लिमिट कितनी है, 5 करोड़ की हो जाती है, बराबर। और प्रोफेशन के लिए लिमिट कितनी रखी हुई है, 50 लाख की लिमिट रखी हुई है। ओके, और जब भी बिजनेस और प्रोफेशन दोनों होता है तो इंडिविजुअली लिमिट देखने की होती है। तो ये 49 लाख है तो 50 लाख के अभाव नहीं, तो इधर भी ऑडिट का जरूरत नहीं है। 98 लाख है तो ये तो 1 करोड़ और 5 करोड़ दोनों के लिमिट के अंदर है, तो इधर भी उसको ऑडिट की जरूरत नहीं है। तो 98 एंड 49 दोनों चीजें है, तो अभी अपने को ऑप्शन देखना पड़ेगा। यस एज द ग्रॉस टोटल रिसीट एक्सीड 1 करोड़, नो। नो एज द ग्रॉस रिसीट फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशंस आर बिलो द स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड लिमिट, आंसर इज दिस, बी। Okay, next. With respect to the payment made to a contractor and to the interior designer during the year 2021, Ms. Sanchal consulted various persons. They have the following views. तो पहले अपने को पहले क्लियर करते हैं वो व्यूज क्या बोल रहे हैं, उसके पहले देख लो। इधर 12 लाख रुपए का पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को है, 2.5 लाख रुपए का पेमेंट इसको इंटीरियर डिजाइनर को है, ठीक है। अब आपको पता होगा नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था, सेक्शन 194M, और उसके अंदर जो लिमिट है वो 50 लाख की लिमिट है। पर्सनल पर्पस के लिए अगर होता है तो 50 लाख तक का पेमेंट है तो कोई टीडीएस नहीं, 50 लाख के अबाव रहेगा तो टीडीएस काटने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो अभी ये चीज को अपने को उधर ढूंढने का है, नीचे आंसर में अपने को ढूंढना पड़ेगा। With respect to the payment made to the contractor and the interior consultant designer previous year 2021, Ms. Chanchal consulted various persons. Since she is required to deduct the tax at source under section 194C and J, since the turnover from business for the previous year 2019-20 exceeds 1 crore, which is not correct. Why? Because वो पर्सनल पर्पस के लिए है, बिजनेस में होता तो टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता। She is required to deduct the tax at source under section 194M on both the payments. So this answer is also not correct. Okay. Next one, she is not required to deduct the tax at source neither under 194C nor under 194J, since such amounts are paid for personal purpose. Yes, this is one of the correct answer. And she is not required to deduct the tax at source under section 194M, since the payment to each individual does not exceed rupees 50 lakh. Yes, this is also correct answer. Which option is correct? The correct option is option number A. Third and fourth views are correct. Okay. आई होप सो मजा आ रहा होगा तुम लोग को। अगर मजा आ रहा है तो प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि तुम्हें अच्छा लग रहा है ये वीडियो लेक्चर्स, तुम्हें हेल्प हो रही है इस वीडियो लेक्चर से, सो दैट आई ऑल्सो गेट appreciated with respect to your comments. Okay, I also get a appreciation for this, and I will be motivated to make the more and more videos for your help. And if you need any other guidance lecture also for with related to the direct tax, then also you can let me know in the comment box. What is the amount and nature of capital gain chargeable to tax in the hands of Ms. Chanchal? नेचर ऑफ कैपिटल गेन क्या होगा और अमाउंट क्या होगा, वापस से ऊपर जाना पड़ेगा। 28 मई 2020 को उन्होंने बेचा है। परचेस कब किया था? 28 जून। क्या बेचा है उन्होंने? कमर्शियल प्रॉपर्टी बेची है। तो 27 जून 2020 तक उनको होल्ड करके रखना चाहिए था, उन्होंने तो कब बेच दिया? 28 मई को ही बेच दिया। 28 मई को बेच दिया तो बेटा ये क्या हो गया? शॉर्ट टर्म हो गया। अब शॉर्ट टर्म हो गया तो अभी पहले स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 58 लाख, वैल्यू अडॉप्टेड फॉर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 54 लाख ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट लिया जाएगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्यों लिया जाएगा? बिकॉज अकाउंट पे चेक से पैसा आ चुका था। ठीक है, तो सेक्शन 50C के अकॉर्डिंग अभी अपने को देखना पड़ेगा कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीडिंग 110% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन है क्या? क्यों? अगर इसका आंसर यस आ गया तो मेरा एफपीओसी क्या हो जाएगा? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हो जाएगा। पहले स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को कंपेयर कर, दिस इज 54 लाख एंड 110% ऑफ 50 लाख, इट कम्स टू 55 लाख।
ये 55 lakhs हो जाएगा और ये 54 lakh, ये तो गलत है। 54 lakh इज नॉट मोर देन 55 lakh, इट इज लेस देन 55 lakh। तो मेरा एफईओसी क्या रहेगा बेटा, एक्चुअल कंसिडरेशन ही रहेगा, और एक्चुअल कंसिडरेशन मतलब 50 लाख। कॉस्ट कितने में था, परचेज फॉर 40 लाख रुपीज, तो 40 लाख 50 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 10 लाख रुपीज। तो 10 lakh will be the short term capital gain. Let us check. Yes, 10 lakh, and उसका आंसर क्या रहेगा, short term. What is the amount of losses which can be carried forward to the assessment year 22-23, assuming that business income is 45 lakh and income from profession is 25 lakh for the previous year 2021. तो देखो उनके पास दो लॉसेस थे, एक उनका ये लॉन्ग टर्म वाला लॉस था। अब हमारे पास जो गेन आया वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के सामने लॉन्ग टर्म लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता है, तो ये चीज कैरी फॉरवर्ड करनी पड़ेगी अपने को। नेक्स्ट वन, एग्रीकल्चर कमोडिटी डेरिवेटिव था। एग्रीकल्चर कमोडिटी डेरिवेटिव इज नॉट कंसिडर्ड एज अ स्पेक्युलेटिव इनकम। तो अगर ये स्पेक्युलेटिव इनकम नहीं है तो फिर इसको हम लोग क्या कर सकेंगे, इसको हम लोग सेट ऑफ कर सकेंगे हमारे नॉर्मल बिजनेस प्रोफेशन की इनकम के सामने। तो हम लोग क्या करेंगे, 70 लाख रुपया जो है उसको सेट ऑफ करने का ट्राई करेंगे। सो 45 लाख इज माय बिजनेस इनकम एंड 25 लाख इज प्रोफेशन इनकम। दोनों को मिला के करेंगे तो 80 लाख माइनस 70 कर देंगे तो 10 लाख रुपीज आ जाएगा। ओके, तो ये 10 लाख रुपीज जो आया, 80 माइनस 70, ये 10 लाख रुपीज जो आया ये मेरे बिजनेस प्रोफेशन की इनकम गिनी जाएगी। ओके, क्योंकि वो कमोडिटी वाला है तो वो स्पेक्युलेटिव में नहीं आता है, तो वो नॉर्मल बिजनेस ही माना जाएगा और उसको हम लोग सेट ऑफ कर पाएंगे। ओके, तो इसको सेट ऑफ कर दिया हमने। अब बचा कौन, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बचा, तो वो 5,50,000 का जो लॉस है उसको हम क्या कर देंगे बेटा, उसको हम लोग नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर। ओके, so 5,50,000 under section 74 will be carried forward. Okay, this is clear. Now move to the question number 19. What question number 19 says, Mr. Abhishek Seth, age 42 years, is a working as a CEO of Soil Limited. He provide you the following information for the preparations and filing of his income tax return for the year ended 31st of March 2021. Salary allowance and perquisites from the Soil Limited is 1 crore 35 lakhs. Dividend from ABC Limited, which was declared in February 2020 and received in April 2020, 4,55,000. Just make a note of it. डिक्लेयर कब किया, फरवरी 2020 में, रिसीव कब किया, अप्रैल 2020 में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने स्टार करूं उतने स्टार इधर कम हो जाएंगे क्योंकि ये पॉइंट के ऊपर गड़बड़ हो सकती है। डिविडेंड फ्रॉम पीक्यूआर लिमिटेड डिक्लेयर्ड एंड रिसीव्ड इन जुलाई 2020 5,90,000, इधर लिखा है ग्रॉस, जुलाई में आया हुआ है, ग्रॉस लिखा हुआ है यहाँ। ओके, नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट इनकम ऑन सेविंग बैंक अकाउंट इन SBI 24,530, सेविंग बैंक अकाउंट है। Long term capital gain on transfer of a residential house in Mumbai on 15 December 2020 173,540. Short term capital gain on transfer of a listed equity shares STT paid both at the time of transfer and acquisition of IND Limited 73 lakhs. He also furnished the following details of investment or payment made during the previous year 2021. 3-year post office time deposit, इसका अगर वो डिडक्शन मांगे तो इसको बोल देना हट इधर से, क्यों, क्योंकि 3 इयर्स नहीं चलता है, 5 इयर्स का टाइम डिपॉजिट होना चाहिए। कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ, यस दिस विल बी एलिजिबल फॉर एटीसी डिडक्शन। ट्यूशन फीस फॉर 3 चिल्ड्रन, 3 चिल्ड्रन का नहीं मिलता है, मैक्सिमम 2 चाइल्ड का ही मिलता है आपको। इन भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल इन दिल्ली 20,000 पर एनम पर चिल्ड्रन, तो 20,000 पर एनम मल्टीप्लाई बाय 2 चिल्ड्रन, so 40,000 will be allowed as deduction under ATC. Subscription to the Nahai redeemable bonds after 5 years on 16th of March 2021 for 2 lakh rupees. तो क्या करने का, कैपिटल गेन के अंदर ये आ सकता है 54 EC में, क्योंकि उन्होंने 15 दिसंबर को एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचा था उसके लिए। फर्दर
His son Mr. Dhaval, age 15 years, also earned the following: income from quiz competition, ये इसमें क्लब नहीं होगा बिकॉज उसके स्पेशल टैलेंट्स है. इंटरेस्ट ऑन बैंक फिक्स डिपॉजिट, ये क्लब हो जाएगा. और 9,500 माइनस 1,500, 8,000 rupees will be club. Mr. Abhishek does not want to opt for the provision of 115 BAC. बहुत अच्छी बात है. Based on the case scenario given above, choose the most appropriate answer the following questions. What is the quantum of income of Mr. Dhaval which is to be clubbed in the hands of Abhishek, if any, assuming that income of Mr. Abhishek is greater than the income of his spouse? अभी हमने देखा क्लब क्या होगा, 8,000 ही होगा, क्योंकि वो जो दूसरा पैसा है 25,000 जो है वो उसके कुछ स्पेशल टैलेंट की वजह से उसको मिला होगा. ओके, व्हाट इज द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर अभिषेक फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है यहाँ पर. ओके, अब यहाँ पे बात सुनना. अभी यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम की जब वो बात कर रहे हैं तो ये सारी चीजों को अपने को कंसिडर करने. ठीक है, थोड़ी देर के लिए अगर कुछ कर रहे हो तो रुक जाना, बिकॉज ये क्वेश्चन नंबर 19 का ये सबसे तगड़ा पार्ट है. सबसे पहले मैं इनकम फ्रॉम सैलरी की बात करूंगा. इनकम फ्रॉम सैलरी में कितनी सैलरी है? 1,35,00,000 का उनका सैलरी है. सो 1,35,00,000, उसमें से 50,000 का इनको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा बेटा. तो 1,35,00,000 माइनस 50,000 अगर आप करोगे, यू विल गेट 1,34,50,000 रुपीज. हाउस प्रॉपर्टी जैसी कोई इनकी इनकम है नहीं यहाँ पर. ओके, तो ये चीज हो गई. इंटरेस्ट इनकम ऑन सेविंग बैंक, ये फर्स्ट वाला केस है, ये भी फर्स्ट वाला केस है, ये भी फर्स्ट वाला केस है. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंशियल हाउस इन द मंथ 15 दिसंबर 173,540. तो कैपिटल गेन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का जो है 173,540 दिसंबर में था. 6 महीने के अंदर अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए था, उन्होंने 6 महीने में इन्वेस्ट किया. नहाई बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट किया 2 लाख रुपए. तो 173,540 पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा. ये नील हो गया. ओके, देन शेयर्स की अगर मैं बात करूं तो एसटीटी पे किए हुए शेयर्स उनको हुए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन द ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स 73 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है. और ये 111A का है 73 लाख. तो वो यहाँ पे आ जाएगा. नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की बात करते हैं. अभी सबसे बड़ा पॉइंट इधर ही है, जो कि ये है डिविडेंड. अब डिविडेंड के इधर जो डिविडेंड एबीसी लिमिटेड से, अब मैं आपको एक झटका देने वाला हूं, वो झटका अगर आप सह सको तो सह लेना. एबीसी लिमिटेड से जो डिविडेंड है वो डिविडेंड एग्जेम्प्ट होगा. एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1034. सर क्या बात कर रहे हो, एग्जेम्प्ट होगा? कैसे एग्जेम्प्ट होगा? आपने तो बोला था 1 अप्रैल 2020 के बाद डिविडेंड मिला तो वो टैक्सेबल हो जाएगा. हाँ बोला था, पर अधूरा ज्ञान आई के बराबर होता है. ये भी मैं आपको क्लासरूम के अंदर बोल रहा हूँ. जरा देखो वो डिक्लेयर कब किया? फरवरी 2020 में किया. और इनकम टैक्स के रूल के हिसाब से उनको 14 डेज के अंदर वो जो भी उनको जो फॉर्मेलिटी करना होता है वो फॉर्मेलिटी उनको करना पड़ेगी. तो उन्होंने ये चीजें सब कर दी होगी. उनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स वगैरह जो पे करने का है एज पर सेक्शन 115 वो उन्होंने पे कर दिया होगा. तो इस डिविडेंड के ऊपर ऑलरेडी कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे कर दिया है. कंपनी ने डीडीटी पे किया हुआ है, तो इसके लिए एग्जेम्पशन अप्लाई हो जाएगा. और ये डिविडेंड 10 लाख से नीचे है, तो इसलिए ये डिविडेंड की अमाउंट, पूरी की पूरी डिविडेंड की अमाउंट क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी. और दूसरा जो उनको आया पीक्यूआर लिमिटेड से, ये डिविडेंड पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा. क्यों टैक्सेबल हो जाएगा? बिकॉज ये डिविडेंड जो है वो आपको एग्जैक्टली 1/4/2020 के बाद मिला, जुलाई 2020 में मिला हुआ है. 5,90,000 का झटका दिया है सर. हाँ बिल्कुल, 5,90,000. देन इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक भी है इधर. 23,750, सॉरी 24,530.
इन दोनों को ऐड कर दो, 5,90,000 प्लस 24,530 हो जाएगा 6,14,530। और अब इन सबका टोटल ले लो, 1,34,50,000 प्लस 73 लाख, 2,13,64,530। ये एक आंसर है, बट एक मिनट चेक करने दो पहले, छूटा तो नहीं है ना। ये छूट गया एक, 8,000 रुपए का क्लबिंग वाला इनकम अपना छूट गया बेटा, 8,000 रुपीज। ये हो जाएगा 2,13,72,530। This will be the gross total income. Let us check this in the options given below. Yes, 2,13,72,530 is the correct answer. I hope it is clear to you. मेरे ख्याल से आपको मजा आ रहा होगा ये चीजों में, बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। What is the amount of deduction allowable under section 80C to 80U to Mr. Abhishek? ओके, एटीसी में उनको कितना, सॉरी एटीसी में उनको कितना डिडक्शन मिलेगा, तो एटीसी में उनको क्या डिडक्शन मिलने वाला है, तो उनको बताओ भाई एटीसी में आपको क्या क्या डिडक्शन मिलेगा। एटीसी की बात हमने ऊपर ही कर दी थी कि आपको कौन सा डिडक्शन मिलेगा। एक तो आपको ये 40,000 का डिडक्शन मिल जाएगा एटीसी वाला, दैट इज चाइल्ड चिल्ड्रन वाला, और पीपीएफ में जो डिपॉजिट किया उसका, सो 40,000 प्लस 35,000 दोनों मिला के हो जाएगा 75,000। तो 75,000 का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ओके, व्हाट शैल बी द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर अभिषेक फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। और उन्होंने ऑलरेडी ऊपर बोला था कि मुझे वो ऑप्ट नहीं करना है, ठीक है। सो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते वक्त अभी पहले 2,13,72,530, दिस इज माय ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से मैं डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से लेस करूंगा। अब लेस करने जाऊंगा तो मेरे पास दो है, एक तो एटीसी है, अभी अभी कैलकुलेट किया कितना 75,000, एंड दूसरा 80 TTA भी आएगा क्योंकि मेरे पास सेविंग बैंक से इंटरेस्ट है, तो उसका भी 10,000 रुपया माइनस हो जाएगा। सो 2,13,72,530 माइनस 75,000 माइनस 10,000, the net taxable income will be 2,12,87,530। एंड आपको पता होगा इसको मैं कैसे डिवाइड करता हूं, सटक लटक लटक, विनिंग एंड बैलेंस। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, अंडर सेक्शन 112 विनिंग्स एंड बैलेंस। 111A वाली इनकम अपने पास ऊपर दी हुई है 73 लाख की, तो वो इनकम, और बाकी और कोई इनकम तो है नहीं, ये वाले में से कोई भी इनकम नहीं है, तो बैलेंस कितना बचेगा 1,39,87,530। ओके, सो इसके ऊपर 15% के हिसाब से टैक्स और इसके ऊपर स्लैब पे टैक्स, तो 73 lakh into 15%, if you will count you will get 10,95,000। और ये 1,39,87,530 के लिए क्या करना पड़ेगा, अप टू 10 lakhs 1,12,500, एंड बैलेंस जो अमाउंट बचेगा, बैलेंस कितना बचेगा 93,98,000,
सॉरी 1 करोड़ 93 नहीं 1 करोड़ 29,87,530 और उसके ऊपर 30% के हिसाब से टैक्स, तो उसके ऊपर 30% के हिसाब से कितना आ जाएगा 38,96,259 प्लस 1,12,500 विल बी गेटिंग 40,08,759. ओके, सो 40,08,759 ये टैक्स आया. अब इन दोनों अमाउंट को क्या करेंगे, ऐड. लेट अस ऐड बोथ दिस अमाउंट 10,95,000 प्लस दिस अमाउंट 40,08,759 plus 10,95,000. If we'll add it, this will be 51,03,759. This is the basic tax. इसके ऊपर अपने को सरचार्ज ऐड करना पड़ेगा और सरचार्ज कितना आएगा 15% आएगा सरचार्ज. क्यों सर, बिकॉज इनकम ज्यादा है 2 करोड़ रुपए से. सो 51,03,759 मल्टीप्लाई बाय 15% will be getting 7,65,564. अब इन दोनों अमाउंट को ऐड कर दो 51,03,759 प्लस 765,564. You will be getting 58,69,323. फिर एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%. So 4% health and education cess will be 2,34,773. 58,69,323 plus 234,773 will be getting 61,04,096. Okay, और ये राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट रुपी 61,04,100. This will be the tax liability. I hope you understood this. 61,04,100. Okay, let us check this answer. Yes, 61,04,100. 61,04,100 is the correct answer. Option is B. Institute के हिसाब से yes, that is the correct answer. Okay, I hope it is clear to you. Okay, only one important point was there in this question with respect to this. Dividend received from ABC Limited is the most important point over here. Please do not miss it. Okay. Last question for the day. That is question number 20. Majors Abhinav and Sons, a sole proprietorship, is engaged in the business of manufacturing pharmaceutical product and it had started its business on 20th June 2016. Tax head of Majors Abhinav and Sons furnishes you the following particulars for the year ended 31st of March 2021. Income under the head PGB pays 5,75,22,750. Interest on fixed deposit credited and received on 30th April 2020. Gross 12,50,000. Donation to the PM Cares Fund 2,50,000. Majors Abhinav and Sons does not want to opt for the provision of section 115 BAC. No ही opt करने का उसको. It has employed total 150 employees. 150 एम्प्लॉय. ये ऐसा आया ना, मतलब समझ जाने का 80JJAA आने वाला है. ओके, during the previous year 1920 with an annual increment of 10% in their monthly emoluments. Details of the same are as under. 1st of May 2019. पहले मैंने अभी थोड़ा इसका नाम लिया 80JJAA, तो इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ. ये 80JJAA सेक्शन क्या होता है. What this section is. 80JJAA section is applicable only to those assessees who's liable to for audit under section 44AB. अंडर सेक्शन 44AB में अगर आप लायबल हो तो आपको 80JJAA का डिडक्शन आपको मिलेगा. 80JJAA का डिडक्शन क्या मिलता है, 30% मल्टीप्लाइड बाय द टोटल इमोल्यूमेंट्स टू द न्यू एम्प्लॉयज.
नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये दिया हुआ है आपको। और ये डिडक्शन अमाउंट आपको कितने साल तक मिलती है? 3 years के लिए मिलता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विद द एम्प्लॉइज आर एंगेज्ड। नंबर 1, उसकी सैलरी 25,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, डज नॉट एक्सीड 25,000 पर मंथ। नंबर 2, वो जो भी नया एम्प्लॉय रहेगा वो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के अंदर उसने क्या किया होना चाहिए? कंट्रीब्यूशन करना होना चाहिए। Number 3, such employee must be engaged into the business for 240 days at least. Okay, and 150 days in the case of the apparel and the footwear business. Okay, minimum 240 days के लिए वो आपके बिजनेस में होना चाहिए, और फुट अपैरल का बिजनेस है तो 150 डेज मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, ये 3 कंडीशन क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाई होगा तो ही आप उसको क्या करोगे? 80JJAA के लिए एलिजिबल रहोगे, और 30% मल्टीप्लाई बाय टोटल इमोल्यूमेंट्स आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें मैंने थोड़ी आपको बेसिक चीजें बता दी। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, नंबर ऑफ एम्प्लॉय कैटेगरी, मंथली इमोल्यूमेंट्स पर एम्प्लॉय, पार्टिसिपेट इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। 1 May 2019 50 रेगुलर एम्प्लॉय 26,500 मिलेगा क्या इसको? 80JJAA एलिजिबल है? नॉट एलिजिबल। व्हाई? बिकॉज इमोल्यूमेंट्स आर मोर देन 25,000। 1 June 2019 65 कैजुअल 23,000, यस दे आर एलिजिबल, बट इधर क्या लिखा है? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट नहीं करते, तो ये नहीं आएगा। 1 July 2019 35 रेगुलर एम्प्लॉय 22,500, यस दे आर एलिजिबल, यस। तो 1 जुलाई 2019 तो पहले देखना पड़ेगा कि ये 240 डेज से ज्यादा है या नहीं है। तो जुलाई 365 में से 30 डेज अप्रैल, 31 डेज मई एंड 30 डेज जून के निकाल दो तो टोटल हो जाएगा 274 डेज। रिवर्स कैलकुलेशन किया मैंने, तो ये एम्प्लॉय 274 डेज के लिए है, तो इसका जो भी इमोल्यूमेंट्स है वो आपको रिडक्शन के तौर पे मिलेगा। दैट इज व्हाट 22,500 मल्टीप्लाई बाय कितना मंथ्स होएगा? 9 मंथ्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 35 एम्प्लॉइज, मल्टीप्लाई बाय 30%। तो 22,500 मल्टीप्लाई बाय 9 multiply by 35 multiply by 30%, we'll be getting a deduction of 21,26,250 for the 3 consecutive assessment years। मतलब 1920 में मिलेगा, 2021 में मिलेगा एंड 21-22 प्रीवियस ईयर में मिलेगा। ये प्रीवियस ईयर में लिख रहा हूँ, मतलब असेसमेंट ईयर के रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे आपको ये बेनिफिट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। In the it has employed further 50 employees during the previous year 2021, details of the same are as under 1/4/2020 20 employees, regular at 21,000, recognized provident fund, yes, so they are eligible। 1st August 2020 30 employees, regular at 26,000, not eligible। why? because sir उनका सैलरी 25,000 से ज्यादा का है। Emolument to all the employees are being paid by way of account pay check only। this is also one of the condition कि account pay check से पैसा देना पड़ता है उनको। okay, no employees have left the job during the previous year 1920 as well as during the previous year 2021। based on the facts of the case scenario given above, choose the most appropriate answer to the following questions। what is the due date of filing of return of income of Messrs Abhinav and Sons for the assessment year 21-22। उसका बिजनेस इनकम देखो कितना है, 5,75,00,000। भाई बिजनेस इनकम ही इतना, तो ऑब्वियसली बेटा टर्नओवर तो ज्यादा होगा ही, तो ये ऑडिट के लिए एलिजिबल है। ओके, ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB के लिए ये बंदा क्या हो जाएगा? लायबल हो जाएगा। तो लायबल हो जाएगा तो उनके लिए ड्यू डेट क्या रखी हुई है गवर्नमेंट ने? देखो, नॉर्मल पर्सन के लिए ड्यू डेट जो है वो 31 जुलाई की है। ठीक है, ऑडिट वाले को 30 सितंबर तक ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना होता है, और उसके 1 महीने के बाद, 1 महीने के अंदर अंदर उसको क्या करना होता है? रिटर्न फाइलिंग करना होता है। मतलब 31 अक्टूबर इज द लास्ट डेट। ठीक है, ऑडिट वालों के लिए। तो इसके लिए ड्यू डेट क्या बनेगी? 31 अक्टूबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, दैट इज 31 अक्टूबर ऑफ 2021 will be the due date। What shall be the amount of deduction available to Messrs Abhinav and Sons under section 80JJAA for assessment at 21-22। तो हमने ऊपर एक अमाउंट कैलकुलेट किया था, वो अमाउंट तो डिडक्शन मिलेगा ही मिलेगा उसको।
प्लस अभी उसने ये जो 20 एम्प्लॉय नए रखे उसका भी उसको डिडक्शन मिलेगा। 20 मल्टीप्लाई बाय 21,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय 30%, तो कितना अमाउंट हो जाएगा? 21,000 इंटू 20 इंटू 12 इंटू 30%, 15,12,000 रुपीज। 15,12,000 प्लस ये अमाउंट जो है 21,26,250, ये दोनों अमाउंट को हम ऐड कर देंगे तो कितना डिडक्शन आएगा? 36,38,250 का डिडक्शन आएगा। 36,38,250 का डिडक्शन। इज इट देयर? यस, ऑप्शन ए, 36,38,250. What amount would be total income of Mrs. Abhinav and Sons for the assessment year 21-22? So for this purpose we have to calculate now. PGBP income उनकी कितनी दी हुई है? 5,75,00,000, 22,750। इनकम फिक्स डिपॉजिट से कितना आया? 12.5 लाख का इनकम आया उनको। We take a total of it, we'll be getting 575, 22,750 plus 12,50,000, 5 crore 87 lakh 72,750 माइनस 80G का डिडक्शन 2.5 लाख रुपए का, पीएम केयर फंड का फुल डिडक्शन मिलता है, and 80JAA just now we have calculated 36,38,250 as I remember this amount. So if we subtract all this, what we'll getting? We will end up with 5 crore 48 lakh 84,500. 5 crore 48 lakh 84,500 we will get. तो देखते हैं वो आंसर है क्या? यस, दिस इज द आंसर, 5 crore 48 lakh 84,500. Okay. What would be the tax payable of Majors Abhinav and Sons for the assessment year 21-20? So 5 crore 48 lakh 48, sorry not 40, 84,500 is my total income. So इसके ऊपर अप टू 10 लाख ऐसे कैलकुलेट होगा क्या? मिसेस अभिनव एंड सन से इंडिविजुअल बंदा है ये, ओके, और कुछ दिया प्रोप्राइटरशिप बोला हुआ है सिर्फ, तो अप टू 10 लाख 1,12,500। बैलेंस के ऊपर 30% टैक्स लगने वाला है इसको, सो वो कितना होगा? 548 84,500 मल्टीप्लाई बाय नॉट मल्टीप्लाई 548 84,500 माइनस 10 lakhs, we get into 30% we will be getting 1 crore 61 lakh 65,350. If we take a total of it, 1,12,500, 1 crore 62 lakh 77,850। फिर इसमें ऐड होगा क्या? ऐड होगा सरचार्ज, ऐड होगा कितना परसेंटेज? एट द रेट ऑफ 37%, बिकॉज इनकम एक्सीडिंग 5 crore rupees and income is not including any other incomes like capital gain incomes, right? So सीधा 37% हम कैलकुलेट करेंगे, विल गेट 60 lakh 62 22 804 कर देता हूँ, 162,77,850 plus 60 lakh 22,805 will be getting 22 crore 23 lakh 00655 plus 4% health and education cess 892,026 223,055 plus 892,026 will be getting 2 crore 31 lakh 92,681. Are we getting this? Is it correct or not? Please let me check first. I think so. I did some mistake.
let me check once again. Just a minute. Okay, so the total is correct, 2 crore 31 lakh 92 681, that is 680, right? दिस इज करेक्ट वन. नाउ इधर एक पॉइंट है, उन्होंने पूछा टैक्स पेएबल, टैक्स लायबिलिटी कितनी है नहीं, बट वो वर्डिंग्स पे ध्यान दो. टैक्स पेएबल पूछा है, टैक्स पेएबल पूछा है, इसका मतलब क्या, भाई सुनना ध्यान से. उनको देखो इंटरेस्ट ऑन एफडी आया हुआ है, कितने का है, 30 अप्रैल 2020 को 12,50 ग्रॉस है ना. ग्रॉस मतलब इसके ऊपर ऑलरेडी बैंक ने क्या किया होगा, टीडीएस काट दिया होगा. और अप्रैल 2020 में मतलब टीडीएस कितना कटा होगा, 10% टीडीएस कटा होगा अंडर सेक्शन 194A. तो बैंक ने इस पे टीडीएस काटा हुआ है. सो 12,50,000 into 10% if you will count will get 1,25,000. So if we subtract 1,25,000, what will get, one, sorry, not 231, 92,680 माइनस कर दोगे तो यू विल बी गेटिंग 2,30,67,680. 2,30,67,680. सी दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन इज डी. ओके, वर्डिंग्स पे ध्यान देना था एक्चुअली में, मैं भी थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, देखा नहीं बराबर. टैक्स लायबिलिटी नहीं पूछी है, टैक्स पेएबल पूछा है उसने. तो टैक्स पेएबल मतलब एक्चुअली में अभी मेजर्स अभिनव एंड सन्स को कितना भरने को आएगा, तो एक्चुअली में मेजर्स अभिनव एंड सन्स को 2,30,67,680 भरने को आएगा. ओके, सो विद दिस आवर टारगेट फॉर डे 4 इज कंप्लीट, दैट इज MCQs and case scenario both is complete. Only one request to all of you, please share as much as possible. Please share as much as possible with your friend. Okay, hope you are getting the benefit of it, so your friend should also get the benefit of it. Okay, so please share with all. Okay, take care of yourself and your family too. Take care. Bye bye. Thank you.